Hello everyone, welcome to Power App फुल कोर्स फॉर बिगिनर इन हिंदी, जिसमें आप सीखोगे कि पावर ऐप में डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं फ्रॉम टेबल कंट्रोल विच इज डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम शेयरपॉइंट लिस्ट। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप सीखोगे कि टेबल में डेटा फिल्टर करने की क्यों जरूरत है। सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि कौन से फॉर्मूला की मदद से आप अपना डेटा फिल्टर कर सकते हो। थर्ड, यू विल डू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ यू कैन फिल्टर डेटा फ्रॉम टेबल कंट्रोल। एंड फोर्थ, मल्टीपल फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं टेबल कंट्रोल में। फिफ्थ, मैं आपको टिप्स शेयर करूंगी जो आपको मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करने में मदद करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट थिंग, लेट मी टेल यू कि डेटा को फिल्टर करने की जरूरत क्यों है। सो लेट मी शो यू द एंड रिजल्ट, आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कर रही हूँ, जो डेटा एक शेयर पॉइंट लिस्ट से आ रहा है। सो दिस इज माई शेयर पॉइंट लिस्ट। नाउ यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, दैट इज 2000 plus rows are there, but here you can see in row count 500 plus count is displaying, and here you can see that all datas are displaying. So let's say if I want to find the employee whose gender is female, so what I need to do without filter, so I need to scroll, then count the number of person, then this is the first female, second, third, and so on. But you know, when data size is limited, then it's okay. But what if the data is too big? Manually आप अगर एक एक रिकॉर्ड को एग्जामिन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. So that is the first reason. सेकेंड रीजन ये है कि अगर आपका डेटा सोर्स डेलीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आप कभी भी देख नहीं पाओगे अगर आप ओनली डेटा को डिस्प्ले कर रहे हो। तो अगर मुझे ऐसा डेटा देखना है कि जो डेलीगेशन लिमिट से ज्यादा है, तो इन दैट केस मैं फिल्टर की मदद से पॉसिबल डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ अगर डेलीगेशन सपोर्ट नहीं करता है तो भी। तो दैट इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन इज दैट अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हो तो आपकी सर्च प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। सो दैट इज द थर्ड रीजन फॉर अप्लाइंग फिल्टर। सो नाउ लेट्स लर्न। लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग, which formula will help you to filter your data. So in your Power App, there is one formula. The name of the formula is filter, which will help you to filter data which you are displaying either in a table control, gallery control, and so on. And inside that formula, you need to write your data source and the condition of the filter. So let's do practical. Now here you can see that I have taken one table control, and in table control, in item property, I have given a name of my data source. So let me explain you data source also. So this is the data of employee, which is displaying the information about department, their first name, last name, in what is the job function of that employee, what is the exit date, what is the start date, what is the status of employee, and so on. So many informations are there. But I want to display only this much information, like what is the employee ID, what's the status of the employee, what is the employee name, date of birth, and so on. Here you can see that lots of data are there. I don't want each and every information, so I will remove the fields which is not required and keep the fields which is required, like employee ID, status, what is the name of the employee, what's the gender of employee, and so on. So let me fix that. So here I am displaying the employee ID, first name, department, gender, status, performance, and job function. So I just go to the edit and adjust the field order and remove the unnecessary field. So it's done. Now what I want to filter this table data based on whatever I am writing in that text box. So in that text box, if I write my name, so automatically the data will be filtered from the table control. And when I write K, it will display the data whose name start with K. So for that, I will use filter formula. So let me go to the table and let me go to the item property of the table. And here I need to write filter formula. So this way you can write filter, round bracket,
then you should write data source name, and then you should write based on which column you want to filter. So based on first name I want to filter, but here based on what condition I will filter first name. So whose name start with the text which I am writing in a text box. So for that you should write start with, then you should write the column name, and after that you need to write based on what. So my text box name is txt_f name. So let me write txt_f name dot value, and let me complete the bracket of start with and filter. So let me save it and run it. If you see this here, I have written case only. The employee information is displaying whose name start with K. So अगर मैं यहाँ पे L लिख रही हूँ तो L जिसका नाम L से स्टार्ट होगा उसी का डेटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। और साथ साथ में देखो यहाँ पे रो नंबर भी चेंज हो रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे A लिख रही हूँ तो ओनली दोज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन विल फिल्टर हुज नेम स्टार्ट विथ A। अगर मैं AR लिख रही हूँ तो बेस्ड ऑन okay, now so this way you can apply filter on your table control, but this is only one filter condition. But what if I want to filter data based on whatever selection it is made in drop down list? Let me show you again. Let's say here यहाँ पे A नहीं, हमें सारा डेटा डिस्प्ले करवाना है, बट मुझे यहाँ पे लेट्स से मैं फ्यूचर स्टार्ट स्टेटस को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। तो मुझे ओनली दोज एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जिसका स्टेटस फ्यूचर स्टार्ट हो और उसका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो। मतलब ये टेबल पे एक से ज्यादा फिल्टर अप्लाई करने हैं। तो कैसे करना है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आपको टेबल पे क्लिक करना है और फिल्टर में जो लिखा है उसमें ज्यादा क्राइटेरिया ऐड करना है। सो लेट मी रिमूव दिस एंड यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं ये पूरा फॉर्मूला समझाती हूँ। जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन फिल्टर। सो फिल्टर में मुझे 3 कंडीशन ऐड करनी है। फर्स्ट क्या पास करना है, डेटा सोर्स का नाम। देन जो भी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो वो तीनों की तीनों कंडीशन के बेसिस पे डेटा डिस्प्ले होना चाहिए या कोई एक कंडीशन के ऊपर भी डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो मुझे तीनों की तीनों कंडीशन की जरूरत है, तो मैं एंड कंडीशन का यूज करूँ। देन स्टार्ट एंड के अंदर जो मैंने स्टार्ट विद लिखा है वो लिखना है। देन आफ्टर राइटिंग अ कोमा आई नीड टू गिव माई सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ फिल्टर। फिर मुझे मेरा थर्ड क्राइटेरिया लिखना है। तो ये एंड कंडीशन के अंदर फर्स्ट फिल्टर क्राइटेरिया है स्टार्ट विद, सेकेंड फिल्टर क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट का, एंड थर्ड फिल्टर क्राइटेरिया है स्टेटस का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट नेम कॉलम पे अप्लाई होता है, सेकेंड फिल्टर क्राइटेरिया डिपार्टमेंट कॉलम पे अप्लाई होता है, और थर्ड फिल्टर क्राइटेरिया स्टेटस के कॉलम में अप्लाई होता है। देन यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्ट की है उस बेसिस पे मुझे फिल्टर करना है। तो ये ड्रॉप डाउन का नाम है DRP स्टेटस एंड सेकेंड ड्रॉप डाउन का नाम है DRP डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा डिपार्टमेंट दैट इज कॉलम नेम इक्वल टू DRP डिपार्टमेंट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे सेकेंड देखोगे तो स्टेटस में जो DRP स्टेटस हमने बनाया दैट इज ड्रॉप डाउन स्टेटस डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, और उसके ऊपर से मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। सो लेट मी से रन इट एंड शो यू। सो लेट्स से हियर यहाँ पे मैं वॉलंटियरली टर्मिनेटेड एंड जिसका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टेटस वॉलंटियरली टर्मिनेट एंड ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डेटा ही दिखेगा और उसका रो काउंट है 110। और लेट्स से अगर जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है वैसा देखना है मुझे। अभी एक्चुअली लेट मी जस्ट गिव प्रॉपर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है और जो वॉलंटियरली टर्मिनेटेड है और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है उसी का डेटा दिखेगा, और टोटल 8 लॉग ऐसे है। तो ये इस तरीके से आप मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब मैं यहाँ पे ये जो डेटा डिस्प्ले कर रही हूँ वो डेटा मेरे कॉलम में से आ रहा है। कौन से कॉलम में से, लेट्स से यहाँ पे एक स्टेटस कॉलम है जिसमें 3 डिफरेंट वैल्यू है, एक्टिव, फ्यूचर स्टार्ट, आई थिंक नॉट 2,
नॉट 3 but 2 वैल्यूज आर देयर। मैंने क्या किया यहाँ पे कि जब मैं आइटम प्रॉपर्टी में जाऊंगी तो मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट और कौन सी कॉलम में से मुझे डिस्टिंक्ट डेटा फेच करना है। सो मुझे एम्प्लॉय डेटा टेबल की स्टेटस कॉलम में से डिस्टिंक्ट डेटा फेच करना है, तो वो सारा डेटा रिपीटेड नहीं आएगा। तो ये ही 3 स्टेटस जो यूनिक है वो डेटा डिस्प्ले होगा। सेम फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट में काम करता होगा, तो डिपार्टमेंट रिडंडेंट डिस्प्ले ना हो, इसीलिए मुझे यहाँ पे भी इसकी ये डिपार्टमेंट के आइटम प्रॉपर्टी में ये डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकोगे कि फर्स्ट आपको डेटा सोर्स का नाम लिखना है और सेकेंड कौन सी कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो लिखना है। सो दिस वे यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर। Now fifth thing, let me tell you the tips that will help you to apply multiple filters. So the first tip is that when you are applying multiple filters, always put one reset button that will reset your data and reset your all control. Basically, let's say here multiple things are there, but when I click on reset, you can see that whatever the data you are seeing, all the data here, whatever data you are seeing, it is not based on any filter, but it is based on the same way that is only employee data. So always put reset button. Second thing, when you are applying multiple filter, decide based on which criteria you want to filter. Third thing, use and or condition wisely. That means यहाँ पे मुझे status और डिपार्टमेंट दोनों में से फिल्टर करना है, कोई एक में से फिल्टर नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर दोनों में से एक में भी हो वो एम्प्लॉय, तो मुझे और कंडीशन लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने आइटम प्रॉपर्टी में आप जब जाओगे तो मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर एक भी जो ड्रॉप डाउन है उसकी सिलेक्टेड वैल्यू ब्लैंक है तो मैं पूरा डेटा डिस्प्ले करूंगी। अगर दोनों की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो ही मैं उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करूंगी। तो ये फर्स्ट किसके लिए है, अगर मेरा जो पेज है वो रीसेट स्टेट में है। रीसेट स्टेट में मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी ब्लैंक है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी ब्लैंक है एंड सेकेंड ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी ब्लैंक है। तो उस बेसिस पे मैंने ये इफ कंडीशन रखी है। अगर उसमें एक में भी कुछ लिखा हुआ एंड उसमें तीनों में कुछ सिलेक्शन है तो ही मेरा डेटा फिल्टर होगा, अदरवाइज मेरा डेटा फिल्टर नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान से रखनी है। सो आई होप ये टिप्स आप ध्यान में रखोगे। द लास्ट टिप आई वांट टू गिव यू इज दैट डोंट यूज लुकअप फॉर्मूला इफ यू वांट टू फिल्टर डेटा। व्हाई? द रीजन इज दैट अगर मैं एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर करना चाहती हूँ बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे एक एम्प्लॉय का डेटा हो या मुझे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय मिले जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। अगर आप फिल्टर करोगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, पर अगर आप लुकअप करोगे तो जो मैच में से फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वही रिटर्न करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड लुकअप। सो बेस्ड ऑन योर नीड यूज दैट। ये वीडियो खत्म करने से पहले लेट्स सी कि आपने क्या क्या इस वीडियो में सीखा। फर्स्ट चीज आपने सीखी कि फिल्टर की जरूरत क्यों है। सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि कौन से फॉर्मूला की मदद से आप फिल्टरिंग कर सकते हो। थर्ड चीज आपने उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा एक फिल्टर अप्लाई करके। फोर्थ चीज आपने मल्टीपल फिल्टर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। एंड फिफ्थ आपको मैंने टिप्स बताई जो आपको फिल्टर अप्लाई करने में मदद करेगी। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।